Hello students, today we will discuss about transportation in animals. You all know that what does transportation means? It means moving of a substance from one place to another. So just like that, for the smooth functioning of life purposes, oxygen, carbon dioxide, digested food, excretory waste, these all things get transported in human. The excretory waste get removed our body through the excretory system and it get transported through the circulatory system. So what is the circulatory system? Basically this is the body's transportation system which consists blood, heart, blood vessels. It transports the nourishment from the digested food, fresh oxygen from the lungs, and the excretory waste of the cells, carbon dioxide from the different parts of body etc. So basically there are two things. One, transportation which happens through the circulatory system, and then removal of waste which happens through the excretory system. So we will discuss the circulatory system now. So it all starts with the heart. What is heart? It's a hollow muscle and roughly in the size of closed fist, जैसे बंद मुट्ठी होती है उस तरह के साइज का होता है. Present in the middle left of the chest. वो बीच में तो रहता है but it's slightly left की तरफ bent रहता है. It pumps blood to different parts of body. This is the actual picture of heart. How does heart looks like? Okay. Then if we cut it through, then you will see that there are the chambers present like this. The right ventricle, there are pulmonary muscles. If we cut it half, then we will get to know that there is the separate chamber for the impure blood and as well as for the pure blood. So there is the left atrium, right ventricle, pulmonary muscles, left ventricle, other all things are will be present. So human and in the birds, the heart is divided into the four chambers: the upper left and right atria and lower left and right ventricle. Okay, so there is the atrium and ventricle, two things हुए, and left and right उसकी direction के हिसाब से that will be get changed. Commonly the right atrium and ventricle are referred together as the right heart because वो दोनों right center में रहते हैं. right atrium जो ऊपर का part रहेगा और right ventricle जो कि नीचे का part रहेगा. और सेम जो दूसरे जब लेफ्ट साइड की आप बात करेंगे तो लेफ्ट जो एट्रियम रहेगा दैट विल बी एट अपर स्टेज एंड लेफ्ट वेंट्रिकल विल बी इन द डाउन स्टेज. तो ये पूरे 4 चैम्बर हो गए और लेफ्ट एक तरफ का पार्ट आपका हो गया, एक तरफ का राइट. तो जब आप उसको हाफ में करते हो तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, बट दैट 2 पार्ट्स कंसिस्ट 2 chambers in each, so there will be total 4 chambers in your heart. So how does the total path occur? How does the blood flows? It starts with the right atrium which get the deoxygenated blood and then it goes to the right ventricle with the हमारी पूरी बॉडी से राइट एट्रियम क्या करेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ले लेगा और वो उसको राइट वेंट्रिकल में पास ऑन कर देगा. देन इट विल गोज टू द लंग्स. फिर वहाँ से क्या होगा, लंग्स से दे गॉट ऑक्सीजनेटेड बिकॉज लंग्स में क्या होती है कि हम लोग ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं दैट हेल्प्स इन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड. देन इट विल मूव्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. ब्लड लंग से आया, लंग से सीधे लेफ्ट एट्रियम में गया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा, देन एओर्टा से अब फिर आर्टिकल्स, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज में होते हुए पूरी बॉडी में वो देन फ्लो होता है और फिर पूरी बॉडी से वेंस के थ्रू वो कलेक्ट होता है. The blood vessels are the components of the circulatory system which transport blood throughout the human body.
अब ये वेसल्स कितनी तरह की होती हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स अगर जैसे कि आपने एक जगह वाटर रख दिया है तो इट विल नॉट गेट ट्रांसपोर्टेड, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ पाइपलाइंस रिक्वायर्ड होंगी। सेम लाइक दैट हमारी बॉडी की जो पाइपलाइंस है दैट ऑल आर आर्टरी एंड द वेसल्स, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी दैट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ब्लड को हार्ट से ले जाने वाली जो वेसल रहेगी दैट इज नोन एज आर्टरीज। एंड ये कहाँ लेके जाती है? ऑर्गन्स और एक एक टिश्यू तक। अब जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी आती है, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट आर्टरी इज एओर्टा, ओके, विच एग्जिस्ट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। जो लेफ्ट वार्टा आपका कहाँ पे ख़त्म होता है? जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है हार्ट का, वहाँ पे। देन यू कैन सिंपली सी दैट दिस इज़ द नॉर्मल आर्टरी वॉल, ओके। ये इस तरह से इतनी थिक इसकी लेयर रहती है। देन द सेकेंड ब्लड वेसल विच इज वेन्स। सो व्हाट आर वेन्स? दे आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ओके। हार्ट से अवे ले जाने के लिए आर्टरीज और हार्ट की तरफ ले जाने के लिए वेन्स। मोस्ट वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द हार्ट। एक्सेप्शन आर पल्मोनरी एंड एम्बिकल वेन्स। सारी वेन्स क्या करती हैं कि जितना भी ब्लड रहता है उसको बॉडी से दूर ले जाती है, बट ऐसी दो वेन्स होती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि ऐसे अगर इफ द क्वेश्चन में कम कि नेम द वेन्स विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यूजुअली वेन्स क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी, बट ऐसी दो वेन्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, दैट ऑल आर पल्मोनरी एंड अम्बिकल वेन्स, ओके। फिर अब वेन्स का स्ट्रक्चर आप देखिए, तो आप यू ऑल कैन सी दैट दिस इज नॉट एज थिक एज द आर्टरीज वॉल्स, क्योंकि इसकी जो वॉल होती है दैट इज थिन वॉल्ड। So what are the basic differences between the arteries and veins? Artery carries the blood away from the heart, while veins what does it do? It carries blood towards the heart. आर्टरी क्या करती है? ब्लड को अंडर हाई प्रेशर लेके जाती है, बिकॉज वो ब्लड को अवे लेके जा रही है। तो वो जब वो पंप होता है तो उसका जो बीपी रहता है दैट विल, ब्लड प्रेशर जो रहता है दैट विल बी हाई। और जब वेन्स यानी जब वो यूज अप होके वापस आता है तो वो उसमें प्रेशर लो रहता है। आर्टरी की वॉल कैसी रहेगी? दैट विल बी थिक, और वेन्स की वॉल दैट विल बी थिन वॉल्स। पल्स जो रहेगी इसकी आर्टरी की, आपने देखा होगा कि जब आपको पढ़ाया गया था हार्ट रेट और पल्स रेट, तब हमने बताया था ना आपको कि जब एक बार आपका हार्ट बीट होता है दैट विल मेक अस सेम सेंसेशन इन द रिलेटेड पल्स आर्टरी ऑल्सो विच इज़ नोन एज पल्स। और वही अगर हम बात करें वेन्स की तो देयर विल बी नॉट सो, इट विल बी अ वेरी स्मूथ फ्लो देयर। ल्यूमेन मतलब कि इसके अंदर का एक स्ट्रक्चर, जो उसकी थर्ड अंदर में ल्यूमेन का स्ट्रक्चर रहता है विच इज़ नैरो इन द केस ऑफ आर्टरी वाइल इट इज़ लार्ज इन द केस ऑफ वेन्स। ल्यूमेन मतलब बीच का स्पेस जो रहता है वो छोटा सा रहेगा अगर आर्टरी की बात करेंगे तो, लेकिन अगर हम वेन्स की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा, क्योंकि इसकी वॉल क्या है? थिन है, इसलिए ल्यूमेन क्या रहेगा? वो बड़ा रहेगा। आर्टरी में देयर विल बी नो वॉल्व्स, लेकिन वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं। आर्टरी में क्या होगा? ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अलावा जितनी भी आर्टरी है सभी का ब्लड जो रहता है विच वो ऑक्सीजन रिच रहता है। बट वेन्स में क्या होता है? ब्लड पुअर इन ऑक्सीजन एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के अलावा सारी वेन्स में ब्लड क्या रहता है? ऑक्सीजन के लिए का कंटेंट उसका कम रहता है। Then the question comes, what is blood? What is blood? Blood is the fluid, okay, in the humans and other animals which delivers the necessary substance from one place to another. जैसे यू कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू, अगर आपके घर में कूलर लगा हुआ है एंड आपने क्या किया कि उसकी पूरी जो पानी की टंकी है उसमें आपने पूरा पानी भर दिया, बट यू डिडंट ऑन द पंप, तो क्या वो आपके रूम को ठंडा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो उसका पानी उसके पास तो है, लेकिन जो उसकी खस है वहाँ तक ये सर्कुलेट नहीं हो रहा है। तो उसको सर्कुलेशन के लिए ये जो
चीज़ चाहिए, डैट इज़ द ब्लड, कि वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है। और वो जो मोटर पंप है वो आपका हार्ट है, क्योंकि वो ऐसे उसको पुश कर रहा है, इतनी पावर दे रहा है कि वो पूरा ब्लड पूरे आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो एक इसके बेसिकली टू मेन्स कंपोनेंट आर प्रेजेंट, वन ब्लड सेल्स एंड सेकंड प्लाज्मा। अब जो ब्लड सेल होती है इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट विल बी द RBC विच इज़ द रेड ब्लड सेल्स, सेकंड विल बी द WBC विच विल बी द वाइट ब्लड सेल्स एंड थर्ड विल बी द प्लेटलेट्स। इसके वर्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ ब्लड सेल्स कितने हुए? 3 दीज वाला रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ओके, इसके नाम के पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा। द वर्ड फॉर द रेड ब्लड सेल्स इज एरिथ्रोसाइट। इफ वी टॉक अबाउट द वाइट ब्लड सेल्स दैट विल बी ल्यूकोसाइट, और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें दैट विल बी थ्रोम्बोसाइट्स। इसके भी कई पार्ट होते हैं, बट वो आपकी कोर्स से ज़्यादा, सो दैट्स नॉट इन योर कोर्स। तो बेसिकली व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ RBC? इट हेल्प्स इन द O2 and CO2 exchange. Platelets, what it does? It helps in the blood clotting. Blood clotting means आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि इफ़ यू गेट इंजर्ड, अगर कोई माइनर इंजरी रहती है, छोटा सा कट रहता है, तो बॉडी उसको सेल्फ ही कवर कर लेती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो कि हीलिंग की है, वो तभी पॉसिबल जब वहाँ पे जो ब्लड जो निकल रहा है वो उसकी थोड़ी सी क्लॉटिंग हो, वहाँ पे हल्का सा थक्का एक बने। अगर नहीं होगा तो ब्लड कंटिन्यूसली निकलता रहेगा। तो दैट थिंग फॉर द ऑल दिस पर्पजेज द प्लेटलेट्स वर्क देयर। एंड व्हाट डज WBC डू? ये आपका जो भी बॉडी का इन्फेक्शन है वो उससे फाइट अप करता है। ओके, सो अगर हम बात करें, अगर आपको इंजरी होती है तो यहाँ पे आपकी सारी ब्लड सेल्स बहुत ज़रूरी रहेंगी, क्योंकि तब प्लेटलेट्स क्या करेगी? तुरंत ब्लड क्लॉटिंग करना शुरू करेगी। WBC क्या करेगी कि वहाँ पे अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आएगा तो तुरंत उसे फाइट करके उसे हटाएगी। और RBC क्या करेगी? अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई को वहाँ पे ऑन रखेगी, तो उससे क्या होगा कि दैट थिंग विल बी गेट हील्ड वेरी सून। मूविंग अहेड, व्हाट इज़ प्लाज्मा? मैंने आपको बताया था ना कि बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स के अगेन 3 पार्ट होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब जो प्लाज्मा चीज़ बचती है ये क्या होता है? बेसिकली ये एक क्लियर और हल्का येलोइश टाइप का लिक्विड पोर्शन रहता है ब्लड का, जिसमें वाटर, प्रोटीन और डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। अब इसमें इसके 90% प्लाज्मा अपने आप में ब्लड का 50 to 55% तक रहता है, लेकिन प्लाज्मा का 90% जो रहता है वो वाटर रहता है। ये क्या करता है कि सारे सेल्स और जो सब्सटेंस में डिजॉल्व रहते हैं उस सभी के लिए एक ये ट्रांसपोर्टेटिंग मीडियम रहता है। और प्लाज्मा बेसिकली प्रोटीन्स रहते हैं विच हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग एंड बॉडी को इन्फेक्शन के थ्रू फाइट करने में, दैट ऑल हेल्प्स अ लॉट। सो आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपने लैब में भी देखा होगा कि अगर एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में एक ब्लड लेके रखा गया तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे आप देखेंगे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो जो ये ऊपर का येलोइश पार्ट है दैट विल बी द प्लाज्मा, जो हल्का बीच में थिक पार्ट आएगा दैट विल बी द वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, और जो सबसे नीचे का पार्ट रहेगा दैट विल बी RBC, द मोस्ट थिकेस्ट पार्ट जो रहेगा दैट इज RBC। अब फंक्शन ऑफ ब्लड क्या क्या होता है? बेसिकली क्या क्या फंक्शन रहेगा? ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप जानते हैं कि अगर ब्लड है तो वो फ्लो करके अपने अंदर जितने भी डिजॉल्व सब्सटेंसेज है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाएगा। तो बेसिकली इट विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मोन्स, इन सभी का ट्रांसपोर्ट करेगा। रेगुलेशन, when the blood circulates it maintains the body temperature also, और जो बॉडी के pH है उसको भी इक्वल करके रखता है। प्रोटेक्शन किसे करता है? क्योंकि क्लॉटिंग कर देता है और इन्फेक्शन से फाइट करता है। ब्लड मतलब ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं और जो WBC हैं वो तो बेसिकली अपना यही काम कर रहे हैं ना कि वो क्लॉटिंग भी कर दे रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उससे फाइट भी कर रहे हैं। तो ब्लड का एक काम प्रोटेक्शन भी रहता है। तो बेसिकली 3 काम रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन,
regulation of body temperature, or third, protection. Now the question comes, the heartbeat. What is heartbeat? Heartbeat क्या होती है? That is the pulsation of heart. ठीक है, जैसे आपका एक बार आपका हार्ट ऐसे लप डप कंडीशन करता है, तो जो एक कॉन्ट्रैक्शन रहता है और फिर एक बार उसको पंप किया गया, तो वो एक बार हल्का सा उठा और फिर वो डाउन हुआ. तो वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन. एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक बार रिलैक्स हो रहा है. ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन को इस साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल. तो the heartbeat is the one complete systole and diastole, or you can say one contraction and one relaxation. जब दोनों को हम जोड़ेंगे, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना और एक बार रिलैक्स होना, both thing is the heart rate. pulse क्या होती है? The beat of heart which is felt by an artery as the wave of blood passes through the artery. जो पल्स हो रही है वो उस आर्टरी में फील होती है जो कि हार्ट से कनेक्टेड है. ठीक है, अब ये हार्ट बीट हमारा था कहाँ पे? हार्ट की चीज़ का था, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. अब ये पल्स कहाँ पे आया? जो आर्टरी उससे कनेक्टेड है. ऑब्वियसली व्हेन इट इज़ कनेक्टेड, तो अगर यहाँ पे मूव होगा तो फिर दूसरी चीज़ भी थोड़ी सी मूव होगी, तो वो जो आर्टरी में पल्सेशन होगा डेट इज़ नोन एज पल्स. अब ये पल्स क्या कब फील की जा सकती है? जितनी भी बार आपकी हार्ट बीट रहेगी सेम उतनी ही बार आपकी पल्स को भी फील किया जा सकता है. फील थम्बिंग इन द आर्टरी कॉज बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. जैसे कि आप फील करते हैं कि अगर आप अपने रिस्ट को पे उंगली रखें तो फिर आपको फील होगा कि हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ हल्के से उठ रही है, फिर डाउन हो रही है, उठ रही है, डाउन हो रही है. तो ये जो थम्बिंग होती है, ये जो पल्स चल रही है, कब चल रही है? अगर जब आपकी हार्ट बीट ऑन है, जब आपकी हार्ट बीट लगातार वर्क कर रहा है आपका हार्ट, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे ये आपकी पल्स कंप्लीटली डिपेंड करती है. और ये बेसिकली उस आर्टरी में फील करती है जो कि क्लोज रहती है स्किन के. ओके, और प्रेस्ड रहती है, अगर एक बोन के पास रहती है ताकि आप उसको इजीली प्रेस कर सकें. तो बेसिकली योर पल्स रेट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट्स पर मिनट. एक मिनट में आपका हार्ट जितनी बार बीट करता है डैट विल बी योर पल्स रेट. यहाँ पे बीट का मतलब सिस्टोल डायस्टोल दोनों के एडिशन से है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों साथ ही में रहता है. द पल्स रेट इज सेम एज द हार्ट रेट. नॉर्मल रेंज क्या होती है? जो एडल्ट रहते हैं उसमें 60 to 100 बीट्स पर मिनट रहता है. मतलब एक मिनट में आपका हार्ट कितनी बार पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पूरा काम किया, उस कंप्लीट को पल्स रेट कहेंगे. चिल्ड्रन में 70 to 150 तक बीट्स पर मिनट रहते हैं, और इन्फेंट्स मतलब कि जो तुरंत पैदा हुए बच्चे रहते हैं उनमें 100 से 160 बीट्स पर मिनट रहते हैं. तो सबसे हाईएस्ट किस में रहेगा? आपके इन्फेंट्स में. देन ब्लड प्रेशर. व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर? मैंने आपको बताया जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है. ठीक है, जब वो ब्लड फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको फ्लो होने के लिए अगर आप ऐसे ही वाटर रख देंगे तब तो हो जाएगा नहीं. बट अगर आप उस पर एक प्रेशर लगाते हैं, उसके ऊपर एक दबाव लगाते हैं कि दैट इट हैज़ टू फ्लो, दैट इज़ नोन एज ब्लड प्रेशर. सेम लाइक दैट, वो जो प्रेशर आप लगा रहे हैं किसी भी फ्लूइड को फ्लो होने के लिए, वैसे ही एक प्रेशर हमारा हार्ट भी लगाता है ताकि वो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में फ्लो हो सके. तो द फोर्स exerted on the walls of vessels by the blood flowing through them. अब वही प्रेशर जब वो ब्लड उसमें फ्लो होता है तो उसकी वॉल्स पे भी लगता है. इसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर. तो ये दो होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब आएगा? जब आपका ब्लड बहना स्टार्ट हुआ है तो जो अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, क्योंकि स्टार्टिंग तो आर्टरीज से, आर्टरीज ही हर जगह लेके ब्लड को जा रही है. तो अब यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. और डायस्टोलिक जो कि आपका ब्लड का प्रेशर लग रहा है अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेन्स. जब आपका ब्लड वापस आ रहा है तो वेन्स के थ्रू वापस आ रहा है, तो अब जो ब्लड जो भी प्रेशर लगा रहा है उस वेन्स के लिए दैट इज डायस्टोलिक. आप एक भी क्लियर कर सकते हैं कि जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब लगेगा? जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब है? जब वो रिलैक्सेशन हो रहा है. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट के पंपिंग का. जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि जब ब्लड
तेज़ी से बह रहा है सारे ऑर्गन्स के लिए, उस समय जो प्रेशर लग रहा है दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब वो वापस आ रहा है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन टाइम दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसको मेजर कैसे करते हैं? जो डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर which is that is known as sphygmomanometer. Okay, sphygmomanometer. How does it look? तो पहले अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, मैनुअल स्फिग्मोमीटर रहता था, फिर मैनुअल ब्लड प्रेशर मॉनिटर रहता था। तो यहाँ पे एक ये ब्लड प्रेशर गॉज रहता था और साथ में स्टेथोस्कोप की हेल्प से उसको मेजर किया जाता था कितना ब्लड प्रेशर हो रहा है। बट नाउ अ डेज देर आर मैनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस प्रेजेंट विच हेल्प्स टू गेट द एक्यूरेट ब्लड प्रेशर विद इन सम सेकेंड्स। इस तरह से डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस समय अवेलेबल है। तो आपने देखा कि ब्लड आपका कैसे फ्लो होता है। इट स्टार्ट्स विद द लंग, जैसे ही लंग से आपका ऑक्सीजन आपने इनहेल किया, ब्लड में आपका ऑक्सीजन, लंग में आपके ऑक्सीजन आया और ये ऑक्सीजन कहाँ गया, सीधे एक पल्मोनरी वेन से होते हुए आपके लेफ्ट एट्रियम में गया। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, वहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहना स्टार्ट होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि वो उसके जस्ट नीचे है, तो वहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर एओर्टा, और वहाँ से पूरी बॉडी में फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब जब वो पूरी बॉडी में फ्लो हो गया, देन वो कहाँ गया, सीधे आपकी वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम। अब वहाँ ऊपर की तरफ एट्रियम, नीचे की तरफ क्या है, राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी। बस वो पहली हमारी बॉडी की वो आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, वहाँ से होते हुए दोबारा लंग्स में गया। यानी कि एक पूरा आपने देखा सर्कुलेशन एक पूरा हो जाता है। तो अब इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब हम इसे डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सेपरेट सर्कुलेशन होता है, देयर विल बी नो मिक्सिंग एट ऑल। एक ही हार्ट है लेकिन उसमें अलग अलग एक चैम्बर जो डैट इज completely responsible for the oxygenated blood, and second is the which is your right atrium and ventricle that is responsible for the deoxygenated blood, and left ventricle and article which is responsible for the oxygenated blood. तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग अलग पाथवे है, देयर इज नो एनी मिक्सिंग, देयर इज नो एनी कॉमन थिंग एमंग दैट। तो अब ये जो चीज़ है कि उस एक ही हार्ट है बट उसमें अलग अलग सर्कुलेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ओके, अब इसका पता लगाना किसने था, तो विलियम हार्वे इज द फर्स्ट पर्सन हु acknowledged this thing and told to all us. So we are very thankful to him. We are very thankful to William Harvey because he is the first person who explained about the double circulation which is present in our heart. Okay, so I hope you all have understood it well. Thank you so much. Take care a lot. Bye.